کلام تحریری صورت میں موجود ہے، وہ میرے ساتھ نکالیے۔ لوکا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان۔ لوکا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 13واں باب اور اس کی 6 آیت سے 9 آیت تک ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے پڑھیں گے۔ جماعت میں سے کوئی بھی، خواتین میں سے یا مرد و حضرات میں سے کوئی بھی جسے خدا کا وہ ابارتا ہے، وہ سامنے آئے اور کلام مقدس کے اس حصے کی تلاوت میں ہم سب کی رہنمائی کریں۔ جی آ جائیں۔ لوکا کی انجیل 13ویں باب کی 6 آیت سے 9 آیت تک پڑھوں گی۔ قرآن کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا اور وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ، 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا، اے خداوند، اس سال اور بھی اسے رہنے دے تاکہ اس میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں، اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ کلام مقدس کے اس حصے کی طرف آج ہم بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم چند باتیں جو ضروری ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ لوکا کے بارے میں تھوڑی سی اگر ہم بات چیت کریں، یسوع مسیح کے اگر آپ 12 شاگردوں کا نام پڑھیں تو کیا ان میں آپ کو لوکا کا نام ملتا ہے؟ جی 12 شاگردوں میں کیا ان میں لوکا کا نام ہے؟ کس بچے کو یاد ہے وہ نام؟ اگر آپ متی کی انجیل اور اس کا 8واں باب پڑھیں تو آپ کو اس میں 10واں باب پڑھیں تو اس میں آپ کو وہ نام ملیں گے۔ تو اگر اس پر آپ غور کریں تو لوکا کا نام جو ہے وہ آپ کو ان 12 شاگردوں میں نہیں ملے گا۔ پھر لوکا کون تھے؟ لوکا جو ہے وہ ایک طبیب تھے، جنہوں ڈاکٹر بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس دور کے ایک طبیب تھے، اور یہ ڈائریکٹلی یسوع مسیح کے شاگرد نہیں تھے، بلکہ یہ پالوس رسول کے شاگرد تھے، لوکا۔ اور انہوں نے پالوس رسول کے ساتھ رہ کر اور پھر باقی شاگردوں کے ساتھ رہ کر جو کچھ سیکھا، اور پھر روح القدس نے لوکا کو استعمال کیا کہ وہ انجیل مقدس جو ہے وہ تحریر کر سکے۔ اور یہ انجیل مقدس انہوں نے کیوں تحریر کی؟ ہمیں پہلے باب کی پہلی آیت سے اگر ہم پڑھیں، وہاں پر بھی کچھ بات ملتی ہے جو 3 آیت میں ہے۔ اس میں ایک شخص ہے، اس لیے اے معزز تھیفلس جو تھا وہ ایک یونانی شخص تھا اور یہ غیر قوم سے تعلق رکھتا تھا، اور یہ ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھا رومی حکومت میں، اور لوکا کے یہ دوست تھے۔ تو جب لوکا یسوع مسیح کی منادی کرتے ہیں تو تھیفلس جو ہے وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ مسیح کون ہے۔ وہ مسیح کے بارے میں ساری معلومات
جاننا چاہتے ہیں اور مسیحی تعلیم مسیحی ایمان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو پھر اس نے لوکا سے یہ درخواست کی کہ مجھے مسیح کے بارے میں جاننا ہے. تو پھر لوکا نے وہ ساری باتیں جو خدا کے پاک روح نے اپنے بندے سے لکھوائی وہ ترتیب وار لکھ کر تھیفلس کو رسال کی, تھیفلس تک پہنچائی تاکہ وہ یونانی شخص مسیح کو قبول کر سکے. اور پھر یہ نہ صرف تھیفلس کے لیے بلکہ اس علاقے میں بہت سے لوگوں کے لیے خدا کا یہ کلام جو ہے وہ بابرکت ہوا. آمین. اور لوکا جو ہے وہ پولس رسول کے شاگرد تھے. ہم اس باب کی طرف آئیں جو 13واں باب ہم نے پڑھا ہے. اس میں پہلی آیت سے 5ویں آیت تک اگر ہم بات کریں تو یسوع مسیح توبہ کی منادی کر رہے ہیں, توبہ کی منادی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر تم توبہ نہ کرو گے, اگر تم اپنی زندگی خدا کے احکامات کے مطابق نہ گزارو گے, اگر گناہ بری حالت کو نہ چھوڑو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. ہاں آئیے ہم ان الفاظ پر غور کرتے ہیں. پہلی 5 آیات کو میں صرف جو ہے وہ پڑھوں گا, اس میں آپ کو کچھ آئیڈیا ہوگا اس بات کا. اس وقت بعض لوگ حاضر تھے جنہوں نے اسے ان گلیلیوں کی خبر دی جن کا خون پلاطس نے ان کے ذبیحوں کے ساتھ ملایا تھا, اور اس نے جواب میں ان سے کہا کہ ان گلیلیوں نے جو ایسا دکھ پایا کیا وہ اس لیے تمہاری دانست میں اور سب گلیلیوں سے زیادہ گناہگار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں, بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے. یا کیا وہ 18 آدمی جن پر شالوہ کا برج گرا اور دب کر مر گئے تمہاری دانست میں یروشلم کے اور سب رہنے والوں سے زیادہ قصوروار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں, بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے. یسوع مسیح وہاں پر لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں. اس سے پہلے 2 واقعات گزرے ہیں. شالوہ کا جو برج تھا وہ گرا اور اس کے نیچے کچھ لوگ آ کر مر گئے, اور وہاں کے لوگ جو تھے وہ کہنے لگے کہ یہ کوئی بہت گناہ گار شخص تھے, اس لیے یہ برج ان پر گر پڑا اور یہ مر گئے. اور ایک واقعہ یہ آیا کہ گلیلی لوگ جو تھے وہ ہیکل میں قربانی گزران رہے تھے, ذبیحے گزران رہے تھے. تو اس وقت پلاطس نے حملہ کروایا ان پر, اور ان کا خون اپنے ذبیحوں کے ساتھ ہی شامل ہو گیا کہ وہ بھی وہاں پر اپنے ذبیحے تو گزران رہے تھے لیکن وہیں پر مذبح پر ان کا خون بھی گرا جو وہاں پر ہلاک ہوئے. تو لوگ کہتے تھے کہ یہ مذبح پر اس لیے ہلاک ہوئے ہیں کیونکہ یہ گناہ گار شخص تھے. یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم ایسی باتیں اپنے ذہن میں نہ لاؤ کہ وہ باقی سب لوگوں سے زیادہ گناہ گار تھے. میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو پھر کیا ہوگا, تم بھی یوں ہی ہلاک ہو جاؤ گے, مارے جاؤ گے. اور پھر ساتھ ہی یسوع مسیح یہ تمثیل پیش کرتے ہیں. پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا. ہم آج تھوڑی دیر پر کے لیے اپنی زندگی میں جس مضمون پر بات کریں گے اس حوالے کو لے کر, وہ یہ ہے توبہ سے نجات ہے. اس سے توبہ سے نجات ہے, پھل لانے سے نجات ہے. ہم ان باتوں پر غور کریں گے. لکھا ہے پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا. پاکستان کس کو کہتے ہیں؟ باغ کو. کون سا باغ؟ امرود کا, مالٹے کا, انجیر کا, کسی بھی قسم کا. تاک کہتے ہیں بیل کو جی, اور بیلوں سے جو باغ بنا ہوتا ہے اس کو تاکستان کہتے ہیں. زبردست بھائی صاحب. تاک کہتے ہیں بیل کو, اور خاص طور پر اس علاقے میں جس کو پاکستان کہا جاتا تھا
इसराइल के मुल्क में, फलस्तीन के मुल्क में, मशरिक वस्ता में जिसको पाकिस्तान कहा जाता था, वो अंगूर के बाग को कहा जाता और अंगूर की ताक लगती है, ठीक है। और उसकी भी एक खास वजह है कि अगर आप अंगूर का बीज लगाएं तो वो जब बड़ा होगा वो 5 साल के बाद जो है वो फल देगा, और अगर आप उसकी ताक लगाएं, कलम जिनको उसी कहते हैं, ठीक है, तो वो 1 साल के बाद ही जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो फल देना शुरू कर देगी, इसलिए वो ताक लगाई जाती है। तो पाकिस्तान कहते हैं अंगूर के बाग को, है अंगूरों का बाग, लेकिन वहां पर लगाया क्या है किसी ने? अंजीर का। कि बाकी सारे एक जैसे हैं, लेकिन एक ऐसा है जो बाकी सबसे मुख्तलिफ है। यहां पर हम 2-3 मुख्तलिफ चीजों को सीखेंगे। अगर हम उस दौर की बात करें तो यीशु मसीह के कहने का मतलब जो है वो ये है कि खुदा ने इस दुनिया को बनाया, खुदा ने इस दुनिया में इंसान को रखा, और इंसान बढ़ते 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 बहुत से कबाइल में बट गया, बहुत से घराने जो हैं वो इस जमीन पर आबाद थे, और फिर खुदा ने एक को चुना जिसे उसने बिल्कुल अलग ठहराया, और वो बनी इसराइल कौम थी। खुदा कहता है ये मेरी चुनी हुई कौम है, ठीक है। और फिर इसमें अगर हम देखें तो खुदा ने बनी इसराइल को इस दुनिया में रखा, और अगर हम शरीयत का बगौर मुताला करें तो लिखा है कि तुम मेरे हुक्मों पर अमल करना, और उससे इर्द गिर्द की अक़वाम जानेगी कि ये बड़ा अच्छा मुल्क है, ये बड़े अच्छे लोग हैं, इनका रहन सहन बहुत अच्छा है, इनका चाल चलन बहुत अच्छा है, इनका मुल्क बड़ा खुशहाल है। वो जब ये देखेंगी तो फिर वो कहेगी कि ये यूं ही अच्छा नहीं, ये इसलिए अच्छा है कि यहोवा पाक खुदा की कौम है। आमीन। खुदा कहता है कि तुम्हारे इन अमाल के वसीले से मेरी तारीफ होगी। आज अगर हम इस बात को देखें तो खुदावंद यीशु मसीह के पाक रूह के वसीले से मैं और आप भी एक कौम बने हैं, मैं और आप भी एक खास मलकियत बने हैं। पतरस इसको इस तरह बयान करता है कि तुम जो कोई कौम न थे, तुम्हारी कोई अहमियत ना थी, तुम्हारी कोई वक़्त ना थी, अभी तुम जिंदा खुदा की कौम हो, खुदा की खास मलकियत हो, शाही काहिनों का फिरका हो। किसके वसीले से? यीशु मसीह के वसीले से। यहां पर जो बात की गई है वो ये बात की गई है कि खुदा ने सारी दुनिया में से उस वक्त बनी इसराइल को चुना कि उसकी नुमाइंदा कौम हो। आज खुदा ने यीशु मसीह के वसीले से कलीसिया को चुन लिया है ताकि वो सारी दुनिया में खुदा की नुमाइंदा हो, खुदा की मनादी करने वाली हो, खुदा की बरकतों को दुनिया तक जो है वो पहुंचाने वाली हो, खुदा के तमाम अहकामात को, उसकी तमाम खूबियों को, खुदा के तमाम खसूसियात को दुनिया पर जाहिर करने वाली हो। आमीन। आगे बढ़ते हैं। खुदा ने ये इसलिए किया कि उसने इस दुनिया में उस वक्त उस कौम को रखा, आज मुझे और आपको कलीसिया को इस दुनिया में रखा, पाकिस्तान लगाया, और उसमें अंजीर का जो दरख्त है वो उस वक्त बनी इसराइल कौम थे, और आज मैं और आप जो हैं वो अंजीर का दरख्त है। आमीन। है गया अंजीर का दरख्त? आमीन आमीन। आगे लिखा है वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। फल ढूंढने आया, वजह क्या है कि यीशु मसीह ने यहां पर बात ही सिर्फ अंजीर की थी, तो वो फल ढूंढने किसके पास आया? अंजीर के पास। वजह ये है, अगर आप एक और वाक्या भी पढ़ें, जब यीशु मसीह जो है वो बैतनिया से यरूशलेम जा रहे थे तो उन्हें भूख लगी और वो एक अंजीर के दरख्त के पास आए और उसमें देखा तो उन्हें फल ना मिला, तो उस वक्त उन्होंने उस दरख्त पर लानत की कि कभी दोबारा तुझे फल ना लगे, क्योंकि उसमें फल नहीं था बल्कि सिर्फ पत्ते थे, तो फल नहीं था। तो लिखा है कि वो
उसी वक्त सूख गया। ठीक है, यहां पर भी जब यीशु मसीह मिसाल दे रहे हैं तो अंजीर की मिसाल दे रहे हैं। उसकी वजह यह है, अब जो दुनिया में जितने भी फलदार दरख्त देखें उनमें और अंजीर में एक वाज़ेह जो फर्क है वो ये है कि आप जितने भी फलों को देखते हैं, दरख्तों को देखते हैं, वो दरख्तों पे पहले पत्ते निकलते हैं। जैसे ही बहार का मौसम आता है पत्ते निकलते हैं, फिर वो पत्ते बड़े होते हैं, दरख्त पूरा भर जाता है। उसके साथ साथ उसके जो फल के लिए जो है वो जिन्हों पंजाबी च कहने हैं कि डोडियां जियां बन दियां ने, या बूर होता है जिन छोटे छोटे से कहने जी बूर लग गया दरख्त पे। ठीक है, आम के दरख्त पे भी या अंगूर के दरख्त पे भी बूर लगता है। ठीक है, आप बहुत से दरख्तों को देखेंगे उसमें बाद में फल लगेगा, पहले उसमें क्या होगा, पत्ते होंगे, बाद में फल लगेगा। लेकिन अंजीर में ये खूबी है कि उसके अभी पत्ते नहीं निकलते, तो पहले फल के लिए जो डोडियां होती हैं वो पहले बन जाती हैं। ये बिल्कुल मुनफरिद है, ये अंजीर की खसूसियत है। ठीक है, इसलिए जब यीशु मसीह आते हैं 3 साल तक उसमें फल ढूंढने के लिए आते हैं, पत्ते तो उसमें नजर आ रहे हैं, वो शो ये कर रहा है कि मुझ में फल है, पहले से फल है फिर पत्ते निकले हैं। ठीक है, लेकिन जब आके देखते हैं तो पत्ते ही पत्ते होते हैं, फल नहीं होता। इसमें यह लिखा है कि 3 साल तक आते रहे कि फल मिले, लेकिन फल होते जो कोई भी नहीं मिला। आज भी कलीसिया कई दफा ऐसा करते, उस वक्त बनी इसराइल कौम भी ऐसा कर रही थी, आज भी कलीसिया ऐसा कहते हैं। हम शो ये करते हैं कि हम ईमानदार हैं, हम शो ये करते हैं हम मसीह के लोग हैं, हम शो ये करते हैं हम तौबा याफ्ता हैं, हम ये शो करते हैं हम दुनिया के लिए शिफा का बायस हैं, हम शो ये करते हैं कि हम यीशु मसीह की मुनादी करने वाले हैं, हम शो ये करते हैं हम यीशु मसीह को दुनिया में मुतारफ करवाने वाले हैं। लेकिन अपनी जिंदगी में अगर झांक कर देखें तो अपनी जिंदगी में फल नहीं। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मैं 3 साल आता रहा, 3 साल जो है वो, इस पर थोड़ा हम गौर करेंगे कि ये 3 साल क्या है। इसमें मुख्तलिफ उलमा के मुख्तलिफ नजरियात हैं। मुख्तलिफ उलमा इसकी यूं तफसीर करते हैं, जो पहला नजरिया है वो ये है कि ये 3 साल जो हैं और फिर अगला जो 4था साल मिला। ठीक है, 3 साल जो है ये इंसान की जिंदगी के 3 दौर हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, और फिर चौथा उसे एक मिला ज़ईफ़ी। और इन सभी में इंसान को अपनी जिंदगी में खुदा के लिए फल पैदा करना है। अभी हम आगे जाकर ये भी देखेंगे कि फल है क्या। ठीक है, ये ऐसा ना समझते रहे ना हम कि जो साढ़े नाल कोई अगर दूसरे फ्रूट्स जो बाजार जो मिलते हैं वो टंगे हैं। ठीक है, हम फल पे भी थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे कि ये फल है क्या। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये इंसान की जिंदगी के 4 दौर हैं। ठीक है, और कुछ लोग जो हैं वो, कुछ उलमा 6 एतबार की बात करते हैं कि पहला दौर जो है वो मासूमियत का है और आखिरी दौर जो है वो भी मासूमियत का है। इन दो में हम कुछ नहीं कर सकते। वो उम्र के हिसाब से इसका जो है वो 6 दौर की बात करते हैं कि इंसान की जिंदगी में 6 दौर गुजरते हैं। ठीक है, मैं इसको शार्ट करता हुआ आगे बढ़ूंगा, लेकिन मतलब एक ही है कि इंसान की जिंदगी के में मुख्तलिफ जो अयाम गुजरते हैं, मुख्तलिफ बर्स गुजरते हैं। ठीक है, कुछ उलमा इसकी यूं तफसीर करते हैं कि ये जो 4 साल जिनका जिक्र है कि 3 साल के लिए वो फल ढूंढने आता रहा लेकिन उसे फल ना मिला, फिर उसने बागबान से कहा कि इसको काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रखे, क्यों मैंने जगह मली है चुप के बाहर सट दे तेरी जगह को दूसरा पौधा थे ला जरा फलदार हो। ठीक है, ये जो 4 साल है कहने के ये मसीह यीशु की जिंदगी के 4 वो साल हैं जिन्होंने यीशु मसीह, जिन सालों में यीशु मसीह ने जमीन पर रहते हुए खिदमत गुजारी का काम किया। बपतिस्मा लेने के बाद 3 साल यीशु मसीह ने खिदमत की, लोगों में मोजज़ात किए, कलाम सुनाया, लोगों को तालीम दी, लेकिन यहूदी कौम में से
मेजॉरिटी लोग जो थे उन्होंने यीशु मसीह को रद्द कर दिया, ठीक है। उस कौम ने यीशु मसीह के लिए कोई फल, खुदा के लिए कोई फल पैदा नहीं किया। और फिर चौथा साल जो था उसमें फल ये मिला कि जब वो चौथे साल में मुर्दों में से जी उठे और उसके बाद शागिर्दों ने आगे मुनादी करना शुरू की, तो फिर उस कौम में से लोग खुदा के लिए जीते गए। ये एक है। कितने नजरिए हो गए जी? कितने? दो। पहला कौन सा था कि इंसान की जिंदगी के चार दौर, चार द्वार जो है वो। दूसरा ये नजरिया ये कि इंसान यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो जो उन्होंने खिदमत के साल गुजारे वो खिदमत के साल हैं, ये 4 साल जिनका जिक्र किया गया है। आज हम इस पर एक और नजरिए पर भी गौर करेंगे। हम पूरी बाइबल मुकद्दस को देखें। खुदा ने जब भी कलाम किया इंसान की बेहतरी और भलाई के लिए कलाम किया। आमीन। ऐसे ही है जो मूसा के जरिए से कलाम किया, पहली 5 किताबें, क्या वो इंसान की बेहतरी के लिए नहीं था? था कि नहीं डॉक्टर साहब? आमीन है। उसके बाद फिर आप देखें कि इसराइल की हिस्ट्री का दौर शुरू हो जाता है बाइबल मुकद्दस में। जब तारीख की किताबें हम पढ़ते हैं, यशवा की किताब से लेकर आगे हम अज़रा, नहमिया, आस्तर तक चले जाएं, ठीक है। आस्तर की किताब तक ये हमें बनी इसराइल की तारीख जो है वो इसमें नजर आती है। इसके अलावा तीसरी जो बात थी बाइबल मुकद्दस को हम उठाएं तो वो तीसरा हिस्सा हमें कैसा मिलता है जो खुदा ने अपने नबियों के वसीला से, अपने अंबिया इकराम के वसीला से कलाम किया। खुदा ने शरीयत में, कुरान में कलाम किया कि इंसान अपनी जिंदगी से मेरे लिए फल पैदा करे। खुदा ने बनी इसराइल की तमाम उस तारीख में उसके साथ वफादारी निभाते हुए उसे बियाबानों में संभाला, मुख्तलिफ वाक़िआत में सिखाया। उन पर कभी वो गज़बनाक भी हुआ, कभी उन पर रहम करता है, कभी उन्हें मुख्तलिफ आफात में से गुजारता है और सिखाता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम्हारा काम यह है कि तुम मेरे लिए फल पैदा करो। आमीन। और फिर खुदा जब वो अपने नबियों से कलाम करता है, जब वो बिगाड़ में पड़ जाते हैं, बनी इसराइल खुदा से दूर हो जाते हैं, अपने नबियों के वसीले से कलाम करता है, तब भी खुदा उनसे यही कहता है तौबा करो, होश में आओ और अपनी जिंदगी मेरे अहकाम के मुताबिक गुजारो। खुदा ने इन तीनों हिस्सों में, तौरात में, तारीख के सारे हिस्से में और अंबिया के वसीले से कलाम करके इन तीनों हिस्सों में इंसान से यही कलाम किया कि मेरे लिए फल पैदा करो। तुम्हारे अंदर मेरी सफात नजर आनी चाहिए, तुम जमीन पर मेरे अच्छे गवाह बन जाओ। 3 द्वार, 3 हिस्से, 3 साल, लेकिन इंसान ने फिर भी कबूल नहीं किया। और फिर चौथा हिस्सा हमें मिलता है, कौन सा? अंजीर मुकद्दस। जब मेरा और आपका मुनज्जी इंसान बनकर इस दुनिया में आ गया, उसने हमें एक मौका और दे दिया ताकि हम फल पैदा करें। इस सारे हिस्से में अगर आप इंसान के जिंदगी के अदवार की बात करें, आप यीशु मसीह के खिदमत के उन सालों की बात करें, या आप बाइबल मुकद्दस के इन 4 हिस्सों के बारे में, तौरात के बारे में, तारीख के बारे में, अंबिया के जरिए से कलाम के बारे में और अंजीर मुकद्दस के बारे में, जब भी आप इन सारे हिस्सों में गौर करें आपको पैगाम एक ही मिलेगा, बस तौबा के मुआफिक फल लो। आमीन। खुदा ये चाहता है कि इंसान तौबा करे, अपनी जिंदगी से खुदा के लिए फल पैदा करे और निजात पाए। खुदा ये चाहता है। मुबारक है वो लोग, मुबारक है वो बेटे बेटियां, मुबारक है वो कौम, मुबारक है वो कलीसिया, मुबारक है वो ईमानदार
جن کی زندگی سے خدا کے لیے پھل پیدا ہو, خدا کے لیے پھل نظر آئے. آئیے ابھی ہم یہ غور کرتے ہیں کہ وہ پھل ہے کیا. اس میں بھی مختلف علماء کی مختلف رائے ہیں, لیکن ہم تھوڑا سا اس پر جو غور کریں گے, اگر ہم غلطیوں کی کتاب, غلطیوں کے نام پولس رسول کا ہاتھ سوری, اور اس کا 5واں باب اور اس کی 22ویں اور 23ویں آیت کو پڑھیں تو ہمیں پھل نظر آتا ہے کہ پھل ہے کیا, پھل کیا ہے. آئیے اس پہ غور کرتے ہیں. بائیسویں آیت سے پڑھوں گا, لکھا ہے مگر روح کا پھل محبت, خوشی, اطمینان, تحمل, مہربانی, نیکی, ایمانداری, حلم, پرہیزگاری ہے. ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں. یہاں پر کتنی چیزیں ہیں ذرا غور کریں. کتنی ہیں جی؟ کچھ کہہ رہے ہیں 8 اور کچھ کہہ رہے ہیں 9. 9 ہے جی. محبت, خوشی, اطمینان 3 ہو گئے, پھر تحمل, مہربانی, نیکی 3 ہو گئے, اور ایمانداری, حلم اور پرہیزگاری پھر 3 ہو گئے. تو یہ 9 ہے, ٹھیک ہے. اور یہ 9 ہے, لیکن کچھ لوگ اس کو 9 پھل بیان کرتے ہیں, اور کچھ کہتے ہیں کہ پھل 9 نہیں ہے, پھل ایک ہی ہے, اور وہ ہے محبت. وہ ہے محبت. اگر محبت ہے تو باقی ساری چیزیں ہی اس کے اندر آ جاتی ہیں, باقی ساری چیزیں ہی اس کے اندر آ جاتی ہیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے ایمان, امید اور محبت تینوں دائمی ہے, مگر افضل ان میں محبت ہے. یسوع مسیح سے پوچھا گیا شریعت میں سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ یسوع مسیح کہتے ہیں سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ. آمین. یسوع مسیح نے پوری شریعت کو جو ہے وہ محبت میں بند کر دیا. تو یہ محبت یہ ہے کہ یسوع مسیح کے مشابہ ہو جانا, یسوع مسیح جیسا ہو جانا, یسوع مسیح کی مانند بنتے جانا, یہ ہے محبت. اور اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر جو 9 چیزیں ہیں انہیں ہم 3 مختلف حصوں میں آج دیکھیں گے. یہاں پر یہ جو روح کے پھل میں 9 چیزیں ہیں, انہیں ہم 3 مختلف حصوں میں دیکھیں گے کہ یہ کیسے کیسے انسان کی زندگی کو متاثر کرتے ہیں, اور کن کن پہلوؤں میں یہ ہمارے جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. پہلا حصہ جو دیکھیں گے ہم, اس میں ہے محبت, خوشی اور اطمینان. یہ خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کی مضبوطی کو ظاہر کرتے ہیں. اگر روح کا پھل ہمارے اندر ہے تو ہم خدا کے ساتھ محبت میں مضبوط ہوں گے. خدا کی وہ محبت جو اس نے اپنے بیٹے کے وسیلے سے ہم سے رکھی, وہ محبت ہمارے دلوں میں ہوگی, اور پھر اسی محبت کو ہم دوسروں میں بانٹنے والے ہوں گے. آمین. اس کا دوسرا حصہ ہے خوشی. خدا کے ساتھ تعلق میں خوشی ہے. بہت سے لوگ دنیا کے ساتھ تعلق میں خوشی کو ڈھونڈتے ہیں, لیکن کس تعلق میں خوشی ہے؟ حقیقی خوشی کس میں ہے جی؟ خدا کے ساتھ تعلق. اگر خدا کے ساتھ ہماری محبت مضبوط ہے تو پھر ہماری خوشی بھی جو ہے وہ حقیقی خوشی ہوگی, نہ ختم ہونے والی خوشی ہوگی. اگر دنیاوی چیزوں میں, دنیاوی باتوں میں, دنیاوی کاموں میں خوشی ڈھونڈیں گے تو چند لمحوں کی, چند گھنٹوں کی, چند دنوں کی ہوگی, اس کے بعد. لیکن خدا کے ساتھ جو خوشی ہے وہ ایسی خوشی ہے, اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہونے میں ایسی خوشی ہے جسے دنیاوی دکھ ماند نہیں کر سکتے. کہ خدا کے ساتھ مضبوط تعلق کو ظاہر کرتے ہیں. اگر ہمارے اندر محبت ہے, خوشی ہے,
हमारे अंदर इत्मीनान होगा, खुशी होगी, इत्मीनान होगा कि जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो जहन्नम में या दुख की जगह पर नहीं जाऊंगा। हमारे अंदर खुशी होनी चाहिए। अगर हम खुदा के लोग हैं, अगर हम अपने अंदर फल पैदा करना चाहते हैं, तो फिर खुदा के साथ हमारा ताल्लुक मजबूत होना चाहिए। और वो मजबूत ऐसे होगा कि जब हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत होगी, हमारे अंदर वो खुशी और शादमानी होगी जो दुनिया की चीज़ों से मांग नहीं होती, दुनिया की दुखों से, मुश्किलातों से मांग नहीं होती। हमारे अंदर वो खुशी होगी, वो इत्मीनान होगा जो कभी डामाडोल नहीं होगा। दूसरा हिस्सा जो है इसमें, वो तहम्मुल, मेहरबानी और नेकी का है। तीन चीजें इसमें भी हैं। ये दूसरों के साथ हमारे ताल्लुक को जाहिर करते हैं। हमारे अंदर अगर मेहरबानी है, तहम्मुल है, नेकी है। तहम्मुल का मतलब क्या है? तहम्मुल का मतलब बर्दाश्त करना, बड़े धीमे लहजे में अच्छे अंदाज से बातचीत करना, ये हमारे अंदर होना चाहिए। फिर दूसरों के साथ मेहरबानी से पेश आना चाहिए। इसका ताल्लुक जो है वो इन तीनों बातों को, वो दूसरों के साथ हमारे ताल्लुक को मजबूत करने में। अगर दूसरों के साथ हमारा ताल्लुक मजबूत होगा तो फिर हम फलदार हैं। खुदा के साथ हमारा ताल्लुक मजबूत है तो पहली तीन चीजें हमारे अंदर होंगी, तो फिर इसका मतलब है खुदा के साथ हमारा ताल्लुक मजबूत है। और मैं एंड पर बताऊंगा कि इन तीनों हिस्सों का जो है वो आपस में क्या एक जबरदस्त तरकीब है। खुदा के साथ अगर ताल्लुक मजबूत है तो फिर दूसरों के साथ भी ताल्लुक मजबूत होगा। और दूसरों के साथ जब ताल्लुक मजबूत होगा तो फिर हमारे अंदर क्या जाहिर होगा? तहम्मुल। हम दूसरों के साथ मेहरबानी से पेश कर आने वाले होंगे और दूसरों के साथ फिर नेकी से भी पेश आने वाले होंगे। दूसरे के साथ नेकी करने वाले होंगे, नेक अमाल करने वाले होंगे। अगर खुदा के साथ मोहब्बत है, उसी में खुशी है, उसमें इत्मीनान है, तो फिर उसका रिजल्ट हमें दूसरों के साथ रवैये में नजर आएगा। यूहन्ना का अगर आम हाथ पढ़े ना, तो उसके अगर हम 5 अबवाब पढ़ें, उसमें हमें एक निचोड़ मिलता है। उसमें भी पूरे हाथ में मोहब्बत की बात की गई है और उसमें एक बड़ी जबरदस्त बात की गई है। वो ये है कि अगर हम ये कहें कि खुदा से हमारी मोहब्बत है, जिसे हमने देखा नहीं है, खुदा को हमने देखा जी नहीं, तो उससे हम कहें कि हमारी मोहब्बत है। और अगर हम अपने भाई से, जिसे हमने देखा है, उससे मोहब्बत ना रखें तो हम झूठे हैं। यूहन्ना के खत में ये लिखा। अगर खुदा के साथ मोहब्बत मजबूत है तो फिर उसका दूसरा असर ये नजर आएगा कि हम दूसरों के साथ जो है वो तहम्मुल से, नेकी से, मेहरबानी से पेश आने वाले होंगे। और फिर तीसरा हम इसमें देखेंगे फल में हिस्सा जो है वो है ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी। ये जाती हमारा किरदार की मजबूती की बात है। अगर हम ईमानदारी में हैं, हम कहें कि हम ईमानदार हैं, फेथफुलनेस, ईमान में मजबूत है, खुदा के साथ वफादार हैं, ठीक है, और लोगों से हमारा रवैया अच्छा ना हो तो फिर हमारा जाती किरदार भी मजबूत नहीं है। फिर अगर हम ये कहें कि हम ईमानदार हैं, ईमानदारी होगी नहीं होगी, ठीक है। दूसरों के साथ हम मेहरबानी करने वाले नहीं हैं तो फिर हम कहें कि हम ईमानदार हैं, ईमानदारी नहीं होगी, ठीक है। ये फल हमारे अंदर यूं ही इसी तरतीब में नजर आना चाहिए। फिर आगे लिखा है हिल्म। दूसरों के साथ खलीमी से पेश नहीं आते, मिजाज सख्त है, अल्फाज सख्त है, रवैया सख्त है, और हम कहें कि हम मजबूत किरदार रखते हैं। क्या रखते हैं जी? मजबूत किरदार रखते हैं। तो किरदार मजबूत नजर आएगा नहीं, खलीमी नहीं। ये हमारे शख्सी किरदार की मजबूती में ये तीनों चीजें आती हैं। अगर हमारी जिंदगी फलदार है तो फिर ये तीनों चीजें हमारे अंदर होंगी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी। परहेजगारी का मतलब यह है कि हम हर ऐसे सोच से, हर ऐसे काम से और हर ऐसी बात से दूर रहें जो खुदा को नापसंद है। परहेजगारी का मतलब यह है।
परहेजगार होना जरूरी है। फिर हमारी अपनी शख्सी मजबूती है। रूह का फल 3 हिस्से हमने देखे, खुदा के साथ मजबूत तल्लक, दूसरों के साथ मजबूत तल्लक, और फिर हमारा शख्सी मजबूत किरदार। शख्सी मजबूत किरदार जो है, ये तीनों चीजें होंगी तो हमारी जिंदगी फलदार है। अगर ये नहीं है तो फिर फलदार नहीं है। आइए उस हवाले पर चलते हैं जो हमने लूका की इंजील में से पढ़ा था। उसमें अगर देखते हैं कि क्या है, हमने देखा है कि हम पाकिस्तान में लगा हुआ अंजीर का दरख्त है। ऐसे ही जी दुनिया में हम यीशु मसीह के अच्छे गवाह हैं। हम चुने गए हैं ताकि दुनिया में खुदावंद की खूबियों को जाहिर करें, फल को जाहिर करें। ठीक है, हमें इस सारे हिस्से में बार बार एक बात मिलती है कि खुदा बार बार मौके दे रहा है। खुदा क्या कर रहा है? बार बार मौके दे रहा है, बार बार मौके दे रहा है। 1 साल फल नहीं मिला, दूसरे साल फल नहीं मिला, तीसरे साल फल नहीं मिला। इसका मतलब है पहले भी खुदा के साथ कोई मजबूत तल्लक नहीं है, दूसरों के साथ कोई मजबूत तल्लक नहीं है, और अपना शख्सी जो किरदार है वो भी मजबूत नहीं है। ना पहले साल, ना दूसरे साल, ना तीसरे साल, लेकिन फिर भी खुदा बार बार मौका देता है। आज हम 2025 का पहला इतवार सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, खुदावंद की इबादत कर रहे हैं। आज फिर हम शायरबानी में भी शरीक होंगे जैसे पिछले सालों में शरीक होते रहे। ऐसे ही है, ठीक है, शरीक होते हैं। गौर करेंगे क्या पिछले साल में हमारा खुदा के साथ ताल्लुक मजबूत था? क्या हम अपनी जिंदगी से खुदा के लिए फल पैदा कर सके? क्या पिछले साल में दूसरों के साथ हमारा रवैया, हमारा ताल्लुक अच्छा था, मजबूत था, हम खुदा के लिए फल पैदा कर सके? क्या पिछले साल में अपनी शख्सी जिंदगी, शख्सी किरदार को हम मजबूत कर सके, रूहानियत में बढ़ सके? अगर तो ऐसा कर सके तो इसका मतलब है फल पैदा किया। नहीं तो खुदा ने हमें ये साल 2025 दिया, एक और मौका दिया। क्या कर ले? तौबा कर ले और नजात पा जाए। अपने किरदार को खुदा के साथ मजबूत कर ले, अपने किरदार को दूसरों के साथ मजबूत कर ले, अपनी शख्सी जिंदगी में रूहानियत में बढ़ जाए ताकि नजात पाए। खुदा ने हमें 2025 आज पहले महीने का पहला इतवार है। शायरबानी में भी शरीक होने को है, वो इसीलिए आया ताकि मैं और आप खुदावंद को अपनी जिंदगी से वो फल दे सके जो वो चाहता है। चौथे साल के बाद आगे दोबारा मौका नजर आता है? नहीं। खुदा ने भी क्या दिया? यीशु मसीह ने क्या दिया? बागबान ने क्या दिया? 1 साल इसे और मौका दे रहे। अगर आप फला तो ठीक वरना काट देंगे। खुदा के कलाम में लिखा है कि अब दरख्त की जड़ पर गुलारा रखा हुआ है, इससे पहले कि हम काट की जाए अपनी जिंदगी पे वक्त, इससे पहले कि वक्त ना रहे अपनी जिंदगी पे गौर करें। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, गौर करें।